Hello everyone, this is me Salman Siddiq, and in this lecture we are going to cover quadratic equations, how to solve a quadratic equation, and what is the standard form of the quadratic equation. And this video is relevant to the course IGCSE 0580 and O level 4024. So let's start. First of all, what is quadratic equation? Let's say we have three equation: x plus 3 is equal to 0. This is the equation. And other example is x square plus 2x plus 5 is equal to 0. This is another example of equation, and this is also an equation. And if we have x plus 2 is equal to 2x is equal to 0, here we have four different type of equations. So first we learn what is the degree of the first equation, what is the highest power of the variable in the first equation, which is equal to 1. What is the highest power of variable, what is the variable in the second equation? The variable in the second equation is x. So what is the highest power of x, which is 2. And in the third equation, the highest power of variable x is 3, and the highest power of variable x in the fourth example is 2. So example number 2 and example number 2 3 and example number 4, where highest degree is equal to 2, degree is equal to 2 is called quadratic equation. So any equation in which the highest degree of the variable is 2 is called quadratic equation. It can also be written as x square plus 2 is equal to 0. It can also be written as x square plus 2x plus 3 is equal to 0. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको इस तरह लिखा जाता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इसमें भी हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो सबसे पहली वाली इक्वेशन है इसको हम लीनियर कहते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है. जो 2 वाली होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जो 3 वाली होती है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So here we learn what is the standard form of the quadratic equation and what are the different type of the quadratic equation. Quadratic equation can also be written as x plus 3, x plus 2. When we multiply the both bracket we will get x square, so the equation will be a quadratic equation. If we multiply the both brackets, so it will be x square plus 2x plus 3x plus 6. So the answer will be x square plus 5x plus 6. So this is an also example, this is another example of the quadratic equation. So how we will solve the quadratic equation? There are three different methods. First one is quadratic formula, second one is factorizing, and the third one is completing square, and the fourth one is graphical method, by which we use graphs to solve the quadratic equation. But in this video we will learn about quadratic formula. So the quadratic formula which you need to learn is minus b plus minus b square माइनस 4ac ओवर 2a. ये हमें याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में गिवन नहीं होगा. सो हमें ए बी और सी की वैल्यू कहाँ पे पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगी? जैसा कि एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और हमें ये भी पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो जो ए होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है, बी जो होता है वो एक्स का कॉफिशेंट होता है, सी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है. तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, बी की वैल्यू क्या है 3 है, सी की वैल्यू क्या है 4 है. लेट से अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 होगी और सी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अगर एग्जांपल इस तरह गिवन हो एक्स स्क्वायर 1/8 एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए की वैल्यू जो है वो 1/8 है, बी जो है बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो सो द वैल्यू ऑफ बी विल बी 0, और सी की वैल्यू जो है वो हमारा -3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो -3 है। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ गिवन है, हमने जस्ट इसको क्या करना है फार्मूला के अंदर पुट करना है, इस फार्मूला के अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है और हमें ये आंसर दे देगा। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कैसे मतलब इन दो वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर निकालते हैं। सो लेट्स से अगर हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर -6 -3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -6। सो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू, ये हमें लर्न करना है, ये हमें एग्जाम्स में गिवन नहीं होगा, -b प्लस b² -4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। अब हमने जैसे इसमें क्या करनी है वैल्यू प्लेस करनी है। अब x इज इक्वल टू -b माइनस इंटू माइनस, ये जो है ये हमारा फार्मूले की वजह से है, और b की वैल्यू -3 है, प्लस -b² -3² -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -6 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस विल बिकम +3 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ -3 इज इक्वल टू 9, सो 9 this minus and this minus will plus, so 4 into 6 is 24, so over 2, so x is equal to 3 plus minus 9 plus 24 will give us 33 over 2। एंड अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए लिख लेना है ओवर 2, और एक दफ़ा हमने इसको नेगेटिव के लिए लिख लेना। तो ये जो दो आंसर हैं ये हमारे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जो भी हम सॉल्व करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आंसर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं रूट्स कहते हैं। समटाइम वो P1 में कहता है कि इसके रूट्स फाइंड करें, तो रूट्स का मतलब भी वही होता है जो हमने आंसर्स निकालने हैं। तो ये बेसिकली हमारे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हमें क्या अब ये तो हमारे पास आंसर्स आ गए। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं या 3 आंसर आते हैं, तो ये बड़ा ही इजी है। जैसे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे। अब थर्ड इक्वेशन के हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके जो आंसर्स आएंगे वो 3 होंगे। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री गिव अस, हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके हमारे पास रूट्स होते हैं। हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और we can say the answers of the equation, answers of the equation। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या थी 2 थी, तो इसके आंसर्स भी